اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بات چل رہی تھی فعل مجہول کی، اور اس میں بتایا تھا کہ فعل مجہول کس فعل کا بنتا ہے؟ اس فعل کا بنتا ہے جو فعل متعدی ہو، فعل لازم کا مجہول نہیں بن سکتا۔ آپ سے اگر کنیز فاطمہ کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں بن سکتا فعل مجہول فعل لازم کا، تو آپ کیا کہیں گی؟ جی کنیز فاطمہ، آپ سے اگر کوئی پوچھے فعل لازم کا مجہول کیوں نہیں بن سکتا تو آپ کیا جواب دیں گی؟ جی غلام علی، کیونکہ وہ مجہول بنانے کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اور لازم مفعول نہیں ہے۔ جی غنچہ فاطمہ، آپ سے اگر کوئی پوچھے، سبیکہ آپ سے اگر کوئی پوچھے فعل لازم کا مجہول کیوں نہیں بنتا تو آپ کیا جواب دیں گی؟ فعل لازم کا اس لیے نہیں بنے گا۔ میرا نیٹ ورک خراب ہے، آپ کے نیٹ ورک خراب ہے؟ اب آپ کی آواز آ رہی ہے؟ متعدی نہیں ہوتا نا آگا۔ جی ابھی آواز ٹھیک ہوئی۔ اب بتائیے، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ فعل لازم سے فعل مجہول کیوں نہیں بنتا تو کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کہ فعل مجہول بنانے کے لیے مفعول بے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے کہ فعل مجہول بنانے کے لیے ایک مفعول ہو کہ جو فاعل کو ہٹا کر مفعول کو فاعل کی جگہ رکھ کے اسے نائب فاعل بنایا جائے، اور فعل لازم میں مفعول ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا فعل لازم کا فعل مجہول بن نہیں سکتا۔ اگر بنانا ہے تو پہلے اسے متعدی کرنا پڑے گا۔ اگر فعل آپ کے پاس لازم ہے ذہبا زیدن، تو آپ کو متعدی بنانا پڑے گا۔ کیسے؟ ایک حرف جر لا کے اسم کے اوپر، اس اسم کو اس کے بعد میں لائیے۔ زید کو لے گیا بسعیدن، زید سعید کو لے گیا۔ آپ اس کا آپ مجہول بنا سکتے ہیں، ذہبا بسعیدن، ذہبا بسعیدن۔ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ جی ہیلو جی اب اب ایسا ہے، میں نے مائک نکال دیا بالکل۔ اب بولیے، اب آپ کو تھوڑا زور سے بولنا پڑے گا۔ جی ہاں اب آپ کی آواز وہاں سے سننی پڑے گی سسٹم سے۔ تو اب ذہبا بنا کے سعید کو زید کی جگہ رکھ دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی ذہبا بے سعید، تو اسے کہتے ہیں متعدی بغیر ہی، اور اسے کہیں گے مفعول با واسطہ، مفعول باواس ذهب زید بسعید، ضرب زید سعیدا، سعیدا۔ اسے کہیں گے مفعول بی واسطے، بغیر واسطے، بغیر واسطے کا مفعول، بغیر واسطے کا مفعول، یعنی اس کو مفعول بنانے کے لیے کسی واسطے کی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اس کو مفعول با واسطہ کہتے ہیں۔ مفعول باواسطہ با واسطہ کسی کے ذریعے سے بنایا گیا مفعول ہے، بے کے ذریعے سے، اور یہ ہوتا ہے مفعول بی واسطہ، بغیر کسی واسطے اور وسیلے کا، بی واسطے، مفعول بی واسطہ، بغیر واسطے کا مفعول، کیونکہ اسے کوئی واسطہ کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑی، اسے پڑی، اسے یہ بھی کہتے ہیں۔ آپ اسے مفعول با واسطہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے مفعول بے واسطہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ متعدی بے نفس ہی ہے، یہ فعل متعدی ہے، بے نفس ہی متعدی ہے، خود بخود متعدی ہے، فاعل کے ساتھ مفعول چاہیے، لیکن یہ فعل متعدی ہے اس وقت، لیکن متعدی بغیر ہی، بے کے ذریعے سے، غیر کے ذریعے سے متعدی کیا گیا ہے اسے۔ اب یہ دونوں متعدی ہیں، اب اس کا آپ بنا سکتے ہیں فعل مجہول۔ کیسے؟ فاعل ہٹائیے، مفعول کو، فعل کو مجہول کیجئے، صیغہ ذہبا، ذہبا
ज़ुहैबा और ज़ुहैबा सईदन को कर दीजिए सईदुन, ज़ुहैबा सईदुन, ज़ुहैबा भी सईदिन, क्योंकि ये सईदुन नहीं हो सकता, हर्फ जर है, इसके ऊपर ही सईद ही रहेगा, लेकिन महल्लन मरफू रहेगा ये इसी की तरह। अब हो गया ये नाइबे फाइल, अभी क्या था ये मफूल था, अब ये हो गया नाइबे फाइल। इसलिए कहा गया था कि फेल को मजबूर करने के लिए फेल का मुताद्दी होना जरूरी है, चाहे खुद से हो वो मुताद्दी या करना पड़े। फिर हमने इसकी शक्लें बताई थी कि क्योंकि जब फेल को उसकी मफूल की ज़मीर से मिलाएंगे तो 14 सीगे हैं, ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत, ज़राबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबते, ज़रबतुमा, ज़रबतुना, ज़रबतो, ज़रबना। आप उसमें मफूल की ज़मीर मिलाइए, ज़राबा हु, ज़राबा हुमा, ज़राबा हुम। हर सीगे के साथ 14 मफूल की ज़मीरें मिलाइए। गुंचा फातिमा गौर कर रही हैं? जी आवा, भाई 14 सीगे ऐसे लिखिए, पूरी गर्दान जी आवा, फाइल के साथ, फेल की गर्दान फाइल के साथ 14 सीगे। ज़राबा, ज़राबा अलिफ फाइल है, ज़राबू वाव फाइल है, ज़राबत हेया फाइल है, ज़राबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबते, ज़रबतुमा, ज़रबतुना, ज़रबतो, ज़रबना। अब मफूल की ज़मीरें हर सीगे के साथ मिलाइए तो 14 ज़मीरें मफूल की मिल सकती हैं। ज़राबा, उस एक मर्द ने मारा, हु, उस एक मर्द को, उस एक मर्द ने उस एक मर्द को मारा। अब हुमा, ज़राबा हुमा, उस एक मर्द ने उन दो मर्दों को मारा। ज़राबा हुम, उस एक मर्द ने उन सब मर्दों को मारा। ज़राबा हाँ, उस एक मर्द ने उस एक औरत को मारा। ज़राबा हुमा, उस एक मर्द ने उन सब औरतों को मारा। ज़राबा हुन्ना, उस एक मर्द ने उन सब औरतों को मारा। ऐसे ही उस एक मर्द ने तुझे एक मर्द को मारा, उस एक मर्द ने तुम दो मर्दों को मारा, उस एक मर्द ने, पहला सीगा चल रहा, उस एक मर्द ने तुम सब, उस एक मर्द ने तुझे एक औरत को मारा, उस एक मर्द ने तुम दो औरतों को मारा, उस एक मर्द ने तुम सब औरतों को मारा, उस एक मर्द ने मुझे मारा, उस एक मर्द ने हमें मारा। तो एक मर्द की बात चल रही थी, अब दूसरे सीगे के साथ 14 मफूल की ज़मीरें मिला दीजिए। ज़राबा हो, उन दो मर्दों ने उस एक मर्द को मारा, उन दो मर्दों ने उन दो मर्दों को मारा, उन दो मर्दों ने उन सब मर्दों को मारा, उन दो मर्दों ने उस एक औरत को मारा, उन दो मर्दों ने उन दो औरतों को मारा, उन दो मर्दों ने उन सब औरतों को मारा। यानी हर सीगे के साथ 14 मफूल की ज़मीरें लगाइए। तो ऐसे 14 और ऐसे 14, 14 को गुणा करो तो कितने बने? 196। 14 बाई 14 96, 196 सीगे बने। कितने? 196। आपसे कोई पूछे 14 बाई 14 196 का क्या मीनिंग है, समझाओ, तो आप ये समझाइएगा कि एक फेल में 14 सीगे होते हैं। जब हम 14 सीगे की गर्दान कर लेंगे तो इन 14 सीगों की गर्दान उसकी मफूल की ज़मीर से अगर उसका मुकाबला करेंगे तो मफूल की ज़मीर हर एक सीगे के साथ 14 मफूल की ज़मीर 14 की 14 मिल सकती है मफूल जी। तो जब 14 के साथ हर एक सीगे के साथ 14 मफूल की ज़मीरें से लगाएंगे तो 14 के साथ 14 को हो जाएंगे 196 सीगे, 196 सीगे बन जाएंगे कुल। और वो अलग बात है कि 196 सीगों में से कुछ सीगे नामुमकिन है, मसलन ज़रबता का, तुझे एक मर्द ने तुझे एक मर्द को मारा, मुमकिन है तुझे एक मर्द ने तुझे एक मर्द को मारा, या ज़रबते के, तुझे एक औरत ने तुझे एक औरत को मारा, ये नहीं हो सकता। अगर 196 तसव्वुर किए जा सकते हैं, 196 सीगे, वो अलग बात है कि बाद सीगे इस्तेमाल में नहीं है। समझ में आई कुछ फातिमा आपको? जी आवा, जी। ये तो मुताद्दी बेनफ्से ही था ना, मुताद्दी बेनफ्से ही था ना। मुताद्दी बेहरफे जर वाले की मिसाल देख लीजिए, मुताद्दी बेहरफे जर की मिसाल देख लीजिए, क्या था? ज़हाबा, ज़हाबा, क्या है? ज़हाबा बेही, ज़हाबा वो एक मर्द, बेही उस एक मर्द को ले गया। ज़हाबा बेहिमा, वो एक मर्द उन दो मर्दों को ले गया। ज़हाबा बेहिम, ये हुआ। वो एक मर्द उन सब मर्दों को ले गया, वो एक मर्द उस एक औरत को ले गया, वो एक मर्द उन दो औरतों को ले गया, वो एक मर्द उन सब औरतों को ले गया, वो एक मर्द
तुझे एक मर्द को ले गया, तुझे एक वो मर्द एक को ले मर्द गया। तुम 2 मर्दों को ले गया, वो एक मर्द तुम सब, ऐसे ही इसके साथ भी 14 मफूलीन की ज़मीरें जी आ जाएंगी। 14 बाई 14 196, 6 इसके भी वही बनेंगे। फर्क ये है कि आप इसे देखिए, ज़राबा हु, ज़राबा हु, उस एक मर्द ने उस एक मर्द को मारा। जी या आप देखिए ज़राबा हुम, उस एक मर्द ने उन सब मर्दों को मारा, समझ रहे हैं। और आप एक है ज़हाबा बिहिम, वो एक मर्द उन सब मर्दों को ले गया, वो एक मर्द उन सब मर्दों को ले गया। इन दोनों को अब देखिए, मालूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेले मालूम में कोई प्रॉब्लम नहीं, 196 ही है। ज़हाबा बहिम वो एक मर्द उन सबको ले गया, ज़राबा हुम उस एक मर्द उन सब मर्दों को मारा। अगर इन्हें मजहूल करें तो कैसे करेंगे? मजहूल करें तो कैसे करें? इसे तो आप जानते हैं कैसे मजहूल करेंगे, तो ज़ोहेबा बेहिम। अभी तक तो ये क्या था, ज़हाबा में हुआ था, बेहिम मफूल था। अब ज़ोहेबा खाली हो गया, बेहिम मफूल इसकी जगह आ गया, फाइल की जगह। ज़ोहेबा खाली क्यों हो गया ये हुआ से? क्योंकि फाइल तो खत्म हो गया ना, मजहूल करने में फाइल तो खत्म हो गया ना। हेलो, मजहूल करने में फाइल तो खत्म हो गया ना, मफूल जो था ये नाइब फाइल बन गया। अब गर्दान कहते हो कि ज़ोहेबा बेही, ज़ोहेबा बेहिमा, ज़ोहेबा बेहिम, ये सब की बेही बेहिमा बेहिम मफूल थे जो अब नाइब फाइल है, और ज़ोहेबा खाली हो जाएगा, इसलिए सब जगह ज़ोहेबा ही रहेगा। लेकिन इसे भी मजहूल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। क्या है बताइए? ज़राबा हमको अगर कौन मजहूल करेगा? जो भी मजहूल करेगा एक शाबाशी इनाम में मिलेगी, एक शाबाशी इनाम में मिलेगी। बताइए, एक आसान इनाम में मिलेगा। कौन इसे मजहूल करेगा जी? कोई है ऐसा जी? आप में से कोई है ऐसा बहादुर जो इसे मजहूल कर दे? हैं? अजीब, ये इन्हें जिन्हें मैंने सिखाया पढ़ाया ये नहीं कर रहा है, तो आपसे तो भाई उम्मीद रखना गलत बात है। या है आप में से कोई ऐसा समझदार? हालांकि बहुत आसान है। आगा ज़रूर होगा जी, ना? कोई है ऐसा बहादुर? सभी का आगा ज़रूर होगा ना? सभी का आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जोर लेकिन आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, तो मैंने माइक भी निकाल दिया, आप जोर से बोलिए, मैंने कान भी लगा रखे हैं जी। कोई है ऐसा? अब हमारी आवाज आ रही है? जोर आ रही जी है। बताइए सकीना हाँ, जोरेबू हो, जी। जोरेबू हो। देखिए मैंने क्या सिखाया था, मैंने इसलिए कहा था कि जोरे ये बहुम। चीजें ऐसी हैं सामने की हैं, बस दिमाग हाजिर रखना जरूरी है। क्या बताया था फेल मजहूल करने में? फाइल को हटाकर मफूल को उसकी जगह रखना है। फाइल तो हुआ हमने हटा दिया, ठीक है, जोरेबा हो गया, फाइल हट गया। अब ये हम तो ज़मीर मंसूब है ना, क्योंकि मफूल था, फाइल की जगह रख के उसका एराब देना है ना, तो हम की ज़मीर मरफूई तो वाव है, हम की ज़मीर मरफूई तो वाव है जी, क्योंकि हम तो मंसूब था इसलिए हम था, मरफू होगा तो वाव होगी। जोरेबू वो सब मर्द मारे गए, समझ में आई जी। ज़राबा उस एक मर्द ने मारा, हम उन सब मर्द को, आगा यानी कि ज़मीर की ज़रूरत सबको मारा, तो उस एक मर्द तो हट गया, तो वो सब मारे गए ना, तो वो सब मर्द तो अलग से कुछ लाने की जरूरत नहीं। ज़मीर मरफूई कौन सी? ये तो मंसूब थी इसलिए हम थी, मफूल थी इसलिए हम थी, मरफू है तो वाव होगी ना, ये मरफू हो जाएगा ना फाइल की जगह के। जी जी, वो सारे मर्द भूल गए। फाइल हट के मफूल उसकी जगह आ जाएगा ना, तो खाली ये थोड़ा ही है कि हमने यहाँ पे देखे क्या था, ज़राबा ज़ैदुन सईदन, यहाँ पे हमने ज़ैद को हटा के सईदन थोड़ा ही रखा था,
खाली सईदन ही नहीं रखा था, उसकी जगह रखने के साथ साथ उसका इराब भी दिया था, उसका इराब भी दिया था। तो हम था, ये सईदन जो है वो मतलब बहुत से थे, हम था क्योंकि मफूल था, फाइल की जगह रखो तो उसका इराब भी तो दो। और आप जानते हैं कि ज़मीर रफ़ी हम नहीं है, वाव है। हम की ज़मीर रफ़ी वाव है, तो हो जाएगा ज़ोरेबू, वो सब मर्द मारे गए। अब समझ में आई ये बात? अब बताइए, अब आप में से कौन है जो इसको मजबूर करेगा? ज़रबू हुन्ना, ज़रबू हुन्ना, ज़रबू, पहले तर्जुमा बताइए इसका क्या है ज़रबू हुन्ना का जी? तुम सब औरतों ने सब मर्दों ने उन सब औरतों को, थोड़ा जोर से बोलिए। उन सब मर्दों ने उन सब औरतों को मारा। जी, उन सब मर्दों ने उन सब औरतों को मारा, उन सब मर्दों ने उन सब औरतों को मारा। नतीजा क्या, वो सब औरतें मारी गईं। फाइल आप बताओ, इसका मजबूर करो, गुलाम अली फुरकान मजबूर करो, मजबूर करो। जोरिबना जी, जोरिबना किसने कहा ये? आसान, बहुत खूब। जी बताइए फुरकान, आप भी हैं इतने बहादुर हैं? अब आपने भी सिखाया है। सही कहा सकीना ने जी। ज़राबा जो है फेले मुताद्दी में हरफ जार है जो बेला रहे हो हैं? कितना आसान बात है, फाइल को हटाना है और मफूल को उसकी जगह उसका इराब देकर रख देना है। हुन्ना तो मंसूब था इसलिए हुन्ना था ना, हुन्ना की तो ज़मीर मरफूई ना है ना। ज़ोरिबना, छठा सीगा ज़ोरिबना, मारी गई वो सब औरतें, मारी गई वो सब औरतें। भाई हुन्ना तो मफूल था इसलिए हुन्ना था, हुन्ना की ज़मीर मरफूई क्या है? ना। ज़ोरिबना छठा सीगा, भाई उन सब मर्दों ने उन सब औरतें, तो उन सब औरतें छठा सीगा है ना, छठे सीगे की ज़मीर मरफूई क्या है? ना। ज़ोरिबना, वो सब औरतें मारी गईं। समझ में आ रहा है सभी का या नहीं? जी मुंजा फातिमा जी होगा। अब देखिए, आपको ये सिखाना पड़ेगा आज लग रहा है। अब बताइए, अगर हम डायरेक्ट मजबूर बना लेते हैं और हम देख के कंफ्यूज हो रहे हैं। ज़राबूनी क्या तर्जुमा होगा? गुलाम अली, गुलाम अली, ज़राबूनी तर्जुमा उन सब मर्दों ने मुझे मारा है? सकीना क्या उन कहा? सब क्या कहा? उन सब मर्दों ने मुझे मारा। उन सब मर्दों ने दो औरतों को। ये वाव मैंने मारा है, तुम्हें नहीं पता तीसरे सीगे की वाव होती है और तीसरा जमा मुज़क्कर गायब होता है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें कहते हुए मैंने मारा? ज़राबू नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? ज़राबू तीसरा सीगा, उन सब मर्दों ने मुझे मारा। मजबूर बनाइए अब इसका, कौन बनाएगा इसका मजबूर? क्या माना? यानी मैं मारी गई। जोरिप्तो, जोरिप्तो, जोरिप्तो। आसान, जोरिब तो क्योंकि वाव हट गया ना, फाइल हट गया जी। और या की ज़मीर ये तो मंसूब थी ना, ये मफूल थी इसलिए मंसूब थी, इसकी मरफू ज़मीर क्या आती है? तो हो गया जोरिब। तो उन आप अगर लफ्ज में ना समझ में आ रहा हो तो माना देख लो ना। ज़राबू उन सब मर्दों ने मुझे मारा,
उन सब मर्दों को हटा दो तो मैं मारा गया ना, तो जोरिब मैं मारा गया, मैं मारा गया। कितना आसान है, थोड़ा सा बस दिक्कत करने की, थोड़ा सा ज़हन लगाने की जरूरत है। मसलन देखिए, ज़रबना ज़रबना हुम, ज़रबना हुम, माना क्या हुए ज़रबना हुम के? हाँ, उन सब औरतों को उन सब मर्दों ने उन सब मर्दों ने नहीं, उन सब औरतों को उन सब मर्दों को मारा, छठा सीगा है ज़रबना। अच्छा जी आवाज ज़रबना हुम, उन सब औरतों ने उन सब मर्दों को मारा। मजबूर बनाइए, उन सब औरतों को हटा दीजिए, क्या बनेगा? आवाज जोरे उन सब औरतों ने उन सब मर्दों को मारा ना, यानी वो सब मर्द मारे गए, जोरेबू, वो सब मर्द मारे गए। ठीक है, अभी देखिए, ज़रब तुम हुन्ना, ज़रब तुम हुन्ना छोड़िए, कुन्ना कह दीजिए, चलिए, ज़रब तुम कुन्ना, ज़रब तुम हुमा कह लीजिए, मसलन ज़रब तुम हुमा, ज़रब तुम हुमा, क्या माना हुए? ज़रब तुम हुमा, कौन बताएगा ज़रब तुम हुमा के माना? अरे इधर दिमाग लगा ले भाई, तुम सब ज़रब तुम औरतें, हुमा क्या माना हुए? उन दो औरतों नहीं, उन दो मर्दों को मारा। औरतें दो मर्द को मारती तुम हैं। नौवा सीगा है, तुम सब मर्दों ने मारा, गर्दान तक याद नहीं है, तुम सब मर्दों ने मारा, मर्दों ने, हुमा, उन दो मर्दों को या उन दो औरतों को, मर्द भी तो हो सकते हैं हुमा। ज़रब तुम हुमा, तुम सब मर्दों ने उन दो मर्दों को या उन दो औरतों को मारा, तो दो सीगे बन सकते हैं इसके, बताइए क्या? जोरेबा और जोरेबता। जोरेबा वो दो मर्द मारे गए, वो दो औरतें मारी गई, किसने मारा नहीं मालूम, पहले मालूम था कि तुम सब मर्दों ने मारा है, अब वो तुम सब मर्द को हटा दिया, वो मारे गए। समझ में आ रहा है सभी का? मुंचा फातिमा सईदा कबरानी में, मासूमा में, जी हाँ, याद रखना, बहुत आसान सी बात है, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है, मगर उसके लिए जरूर दिमाग लगाने के लिए भी जब काम आएगा कि जब आपको मालूम और मजूल की गर्दान पूरी याद हो, जब तुम्हें पता ही नहीं कि ज़रब तुम क्या है। जैसे इन्हें देखो, अभी पूछा ज़रब तुम हम सोच रहे हैं, बताइए ज़रब तुम नौवा सीगा है, तुम सब मर्दों ने मारा, हुमा उन दो मर्दों को, कितनी आसान सी बात है, सिर्फ गर्दान और सीगा नंबर याद होना चाहिए, सब आसान है। और जब गर्दान और सीगा नंबर याद है, फाइल मालूम है आपको, ज़रब तुम में तुम है, मजहूल बनाते टाइम उस तुम को हटा दीजिए, जो मफूल की ज़मीर है उसको फाइल की ज़मीर करके रख दीजिए, नाइब फाइल बना के। समझ में आ रहा है जी? जी आवाज। ज़रबना ज़रबनाकुम, ज़रबनाकुम क्या तर्जुमा होगा गुलाम अली? ज़रबनाकुम, हमने उन सब मर्दों को मारा। हम सब सबने अरे बोलो ज़रबनाकुम, गर्दान याद नहीं है, दो दो तीन तीन साल सर पर मैं पढ़ा रहा हूँ। ज़रबना 14वां सीगा है, हम सब ने मारा तुम सबको, हम सब ने मारा तुम सबको, तो हम सब हटा दो, हम सब हटा दो। कुम की ज़मीर मरफूई क्या आती है? तुम, कुम की क्या आती है? तुम, हो जाएगा तुम सब मर्द मारे गए, तुम सब मर्द, इससे पहले पता था कि तुम सब मर्दों को हम सब ने मारा, लेकिन अब हम सब हट गए, तुम सब मारे गए, जोरिब तुम बने गए नहीं? जी आवा समझ में आ गई बात या नहीं? जी आवा बस मजहूल
2-3 باتیں آپ کے ذہن میں پکی ہونی چاہیے، پوری معلوم کی گردان 14 کے 14 صیغے، نام، نمبر، ترجمے کے ساتھ، مجہول کی گردان بھی ایسے ہی، اور آپ کو پتا ہو، یہ نہیں ہو کہ گردان بس رٹی بھی ہے ضربہ ضربہ ضربو ضربہ ضربہ ضربنا، یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے فاعل کی ضمیر تم ہیں، فاعل کی ضمیر تم ہیں، واو ہے، اور جب کوئی چیز مفعول کو اگر مرفوع کیا جائے گا نائب فاعل بنا کے تو وہی ضمیر لائی جائے گی. کبھی کبھی تم کو آپ ایسے کر دیں، آپ ایسے کر دیں، ضربت ہم، اس ایک عورت نے ان سب مردوں کو مارا، پتہ لگا آپ نے یہ تو ہٹا دیا، تے تو ہٹا دیا مثلا مؤنث کا، اسے یہ بھی کر دیا، اور آپ کر دیں کبھی آپ ضربہ ہم، کبھی آپ ضربہ ہم کر دیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو مفعول ہے جس کی تیسری صیغے کی ضمیر کیا آتی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے تیسرے صیغے کی ضمیر واو آتی ہے، اور اس کو اضافہ دینا پڑے گا واو کی وجہ سے. آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو یاد کرنے قابل نہ ہو. گردان لکھ کے دیکھ لیجیے، پہلے صیغے میں ہوا ہے، دوسرے میں الف، تیسرے میں واو، چوتھے میں ہیا، پانچویں میں الف، چھٹے میں نا، ساتویں میں تا، تما تم، تے تما تم نا. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، پتا ہونا چاہیے. جب مفعول کو لگا کے مرفوع کر کے لائیں گے تو اس سے بدلنا پڑے گا، مفعول کی ضمیر کو ان سے بدلنا پڑے گا، کیونکہ مفعول کی ضمیر الگ ہوتی ہے، مرفوع کی ضمیر الگ ہوتی ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ فاعل مفعول جو ہے، جو ابھی تک منصوب تھا مجہول بناتے ٹائم، وہ مرفوع ہو جاتا ہے، نائب فاعل بن جاتا ہے. یہ ضمیروں میں آ کے تھوڑا سا دماغ ہلکا سا لگانا ہے، زیادہ وہ بھی نہیں، مگر آپ نے یاد کیا ہو تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر بالکل ہی یاد نہ ہو تو پھر ایسے ہی گھومے بیٹھے رہیں گے. لیکن اس میں ظاہر ہو تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں اگر ہے تو اس کو تو آپ وہ بھی کر لیجیے. آپ ضربہ زیدونا، ضربت زیدونا، بہت سے زیدوں نے مارا خالدن، خالد کو. بہت سے، جب اسم اگر ہیں فاعل اور مفعول دونوں اسم میں ظاہر ہیں تو مجہول کرنا بہت زیادہ آسان ہے. کیسے؟ بس زیدونا کو ہٹا کے خالدن کو مرفوع کر کے یہاں لے آنا ہے، خالدن کو مرفوع سے ضربہ کر دینا، ضربہ خالدن، زید مارا گیا. اس میں اگر فاعل اور مفعول دونوں اسم میں ظاہر ہیں تو بہت آسان ہے مجہول کرنا. لیکن تھوڑی سی پرابلم بس جب ہوتی ہے جب دونوں کے دونوں ضمیر ہوں. دیکھا آپ نے ابھی؟ جی ہو ضرب تنا، ضرب تنا ہم، ضرب تنا، ضرب تنا نا، ضرب تنا نا. کیا معنی ہوئے اس کے غلام علی؟ عورتوں نے ہمیں مارا، ہم سب کو مارا. جی، تم سب تم سب عورتوں نے ہمیں مارا، تم سب عورتوں نے ہمیں مارا، یعنی ہم مارے گئے. ضربنا ضربنا، ہم مارے گئے. بس تننا ہٹ گیا، یہ تننا ہٹ گیا اور یہ ضرب ہو گیا. اور نا کی ضمیریں وہ تھی نا، مفعول بھی نائی ہے، مرفوعی بھی نائی ہے، اس میں تو وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، سیم ہے. ضربنا، ہم سب مارے گئے، ہم سب مارے گئے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے یا نہیں؟ کنیز فاطمہ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جی آگا کل پریکٹس اس کی کیجیے اپنی کاپی پہ، اپنی کاپی پہ خوب پریکٹس کرنا اس کی، ورنہ تو ذہن سے نکل جائے گی بات. ایسے ہی آپ کو 14 کے 14 صیغوں میں ضمیر منصوب ملانی ہے، اور ملانے کے بعد اس کا مجہول کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ ضمیر فاعلی کو ہٹا کے مفعول کی ضمیر اس کی جگہ رکھ کے اسی سے بدل دینی ہے مرفوعی کر کے. نہیں تو منصوب کی ضمیر الگ ہوتی ہے، مرفوع کی ضمیر الگ ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے مجہول کرتے ٹائم مفعول جو کہ منصوب تھا پھر مرفوع ہو جاتا ہے مجہول کے بعد. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.